সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটছে রাজ্যে, যার জন্য বারবার প্রশ্ন উঠছে যে মানুষের সার্বিক যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তা কোথায়। এই ধরুন কোনো ব্যবসায়ীকে একদম কাছ থেকে উড়িয়ে দেওয়া হোক বা এই ধরনের বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটছে, যাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জনিত একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এবার যে ঘটনা ঘটেছে সেখানেও নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। বিউটিশিয়ান হঠাৎ গায়েব, তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দুদিন পর ভাগ ভাগ অংশ মিলল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রাজ্যে হচ্ছেটা কি, কেন এইভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটছে যেখানে নিরাপত্তা জনিত যে ইস্যু, সেই ইস্যু বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। যদিও এটা আমাদের অর্থাৎ বাংলার ঘটনা নয়। রাজস্থানের যোধপুরে প্লাস্টিকের ব্যাগে পাওয়া গিয়েছে দুদিন আগে নিখোঁজ 50 বছর বয়সী এক মহিলাকে। টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া গিয়েছে ব্যাগে। তিনি একজন বিউটিশিয়ান ছিলেন। তাকে পরিচিত কেউ শেষ করেছে বলেই পুলিশের অনুমান। তার শরীরের অংশগুলি 6 টুকরো করা হয়। এই ঘটনায় গুল মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তির খোঁজ পায় পুলিশ। গত 28 অক্টোবর অনিতা চৌধুরী বিকেলে বিউটি পার্লার বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে রওনা দেন। পরদিন তার স্বামী মনমোহন চৌধুরী যোধপুর থানায় জানান যে তার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিখোঁজের অভিযোগ করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে বিল্ডিংয়ে অনিতার বিউটি পার্লার ছিল সেখানে অভিযুক্ত গোলামউদ্দিন ওরফে গুল মোহাম্মদের একটি দোকান ছিল। ওই মহিলার ফোনে কল ডিটেলস অনুযায়ী পুলিশ গুল মোহাম্মদের বিষয়ে জানতে পেরেছে। সর্দারপুরা থানার অফিসার দিলীপ সিং রাঠৌর জানিয়েছেন যে অনিতা নিখোঁজ হওয়ার আগে একটি অটোতে করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। পুলিশ অটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওই অটো চালক তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল সেই সমস্ত বিষয় জানতে চায় পুলিশ। তদন্ত করে পুলিশ গঙ্গনায় পৌঁছালে সেখানে গুল মোহাম্মদের বাড়ি খুঁজে পায় তারা। ওই বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। পরে গুল মোহাম্মদের স্ত্রী জানায় যে বাড়ির পিছনে ওই মহিলার দেহ নাকি মাটিতে পোঁতা রয়েছে। পরে পুলিশ মাটি খুঁড়ে দেহের টুকরো উদ্ধার করেছে। পুলিশ আধিকারিক কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहां से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। फिर आगे क्या रहा था घटना? उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही। और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। क्या स्थिति में मिली सर? क्या स्थिति में मिली? क्या स्थिति में मिली? बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। सर कितने लोगों के इन्वॉल्व होने का प्रथम दृष्टया जो है आपको आशंका है? अभी तो एक ही आदमी का नाम आया, गुलामुद्दीन। गुलाम के परिजन से परिजनों का भी इसमें कोई समझ, बाद में तफ्तीश में पता चलेगा। तो सर जो कटने की जो हालत थी उसको देखकर क्या लग रहा था कि ज्यादा हथियार था या कोई ग्राइंडर था? अभी ये इससे FSL से और इससे पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ स्थिति देखी जब आपने वहाँ जो टैक्सी वाले की बात के बाद में जब आप वहाँ पहुंचे? प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का पूरा खड्डे की गहराई की बात की कितना फुट था? लगभग जेसी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया। हथियार के बारे में अभी जब जांच करेंगे तो पता चलेगा। सर बॉडी के पार्ट्स काटने के अलावा बॉडी पे कोई चोट के निशान? वो अभी FSL से पता चलेगा। बॉडी अभी शत विक्षिप्त है, तो उसमें जब पोस्टमार्टम होगा उससे पता चलेगा। महिला को भी दस्तयाब किया फिलहाल इसमें? अभी पूछताछ कर रहे हैं। महिला से कोई रिलेशन थी क्या उसके? अभी ये जानकारी नहीं आई। মৃতের স্বামী তিনি বলছেন যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয় দোকান যাওয়ার পরেই সমস্ত কিছু ঘটেছে। কি বলছেন তিনি শোনাবো। मुझे शाम को पता चला 27 तारीख को 7 बजे के आसपास
2:07 में मेरी मिसेज से बात हुई थी। 1:15 मिसेज घर से निकली, मेरे साली जी की डेथ हो गई थी। 10 तारीख को उसके 12 दिन हुए थे। उसको भैया को खुद के खाना बनाने के लिए गई थी। 2:07 फिर से बात हुई, रातानाडा भास्कर चाय खाली भंडार के पीछे पापा। वहां से फिर बोले आपको गाड़ी चाहिए तो मैं घर आऊँ या दुकान चले जाऊँ। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, होगी तो मैं आ जाऊंगा, पीछे वाले गली में दुकान है, आगे वाली गली में मकान है, मैं आऊंगा, जरूरत होगी तो पैसे आ जाऊंगा। नहीं, वो क्या ठीक है, मैं फिर दुकान चली गई। दुकान जाने के बाद के अंदर वो 10 मिनट में दुकान खोल के कांच का लॉक करके वापस नीचे आई। उस दरमियान किसका क्या है जानने। क्या लगता है प्रथम दृष्टि आपको किस पर शक है, किसी पे डाउट है? सब तो क्या, हमें तो नॉलेज में नहीं, तो कोई बात कल रात को सारा क्लियर हुआ। वो उसके मिलने वाला ने कहा जब मैं दुकान गया शाम को 7:30 बजे, तो 2:15 बजे लगभग तो दुकान पहुंची थी। 10 मिनट दुकान जाके वापस नीचे आ गई। उस दरमियान किसने बुलाया, क्या फोन किया, मैं नॉलेज में नहीं था कुछ भी। आप किस हालात में मिला शव जो आप लेने गए थे? शव तो अभी लेने गए थे, कल रात को पता चला। उसने टैक्सी दुकान के बाहर कैमरे चेक किए थे पापा, वहां से वो टैक्सी में बैठ के गई थी। আপনাদেরকে শোনাবো মৃতের ছেলে তিনি ঠিক কি বলছেন। बहुत बुरी हालत में मिला, सब पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया था मम्मी के शरीर के। इतनी बेरहमी से मारा है मेरी माँ को, जिसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज बहुत है, विश्वास में लेके आए किसी इंसान ने ऐसा किया है। जब मम्मी को इतना मानते हैं, भाई बहन जैसे बोलते थे, 25 साल से वहां पे सेम जगह आमने सामने दुकानें थी, बट फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने। इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। आपसे पूरी अपेक्षा है आप हमें पूरा न्याय दिलाया जाए। बस हमें इतना बेरहमी से अलग अलग टुकड़े कर दिए, इतना बेरहमी से हत्या नहीं करनी चाहिए। इतने अलग अलग टुकड़ों में हत्या करके बोरी में डाल के घर के बाहर 20 फुट खाना खोद के पूर दिया, तो गट्टा में डाल के पूरा शरीर का अलग अलग करके। पुलिस ने फोन किया था हमारे को 27 को पता, हम 27 को चले गए थे FIR दर्ज करने रात को। नहीं, अभी जब बॉडी मिलने की जानकारी वो उनके यहाँ में चल रही है। आपको कितने बजे जानकारी थी बॉडी? वो टाइमिंग हमने नहीं देखा है। वो तो थाने में ही है, 24 घंटे वही घूम रहे हैं ना। वो कपड़े नहीं थे, कहाँ मिले? वो कपड़े हमारे को नहीं पता, पुलिस को पता है। वो उनकी मैंने बॉडी देखी, हम उस कंडीशन में नहीं है कभी हम आपको और कुछ बता पाए। और कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमें न्याय चाहिए, आपसे पूरी अपेक्षा है। हमें बस आप पूरा हाथ जोड़ के यही अपेक्षा है कि बस हमें न्याय दिलाए। जो कोई भी है, जो कोई भी इसके पीछे हो, कैसे किया, जो कोई भी षड्यंत्र रचा गया है, उसको बस ये मिली भगत से हुआ, प्लानिंग हुआ है सारा। अपराधी को उसके पीछे। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।